Good morning, students. Today's topic is petty cash book. So, in simple cash book, we have seen that there are two sides, receipts and payment. But in that, we are recording all type of incomes and all type of expenses. But sometimes what happens, we have to deal with small kind of transactions, like 50 rupees, 20 rupees, 100 rupees, etc. So when we are supposed to pay those kind of expenses, so we need to record them separately. So here petty means what? Nominal cash book. इसका मतलब क्या होता है कि जब छोटे मोटे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ पेडी कैश बुक. So here we are going to refer illustration 11. So here first of all the format of petty cash book is, you can see the main heading is in the books of someone, whatever name will be written that you need to write there. Then petty cash. Now the format is, first column is receipt, only first column which is connected with receipt. Then now see, second column is date, third is voucher number, then particulars, and now all the columns which are given on right side, they are connected with payment. So first column is total payment, and now then we have given conveyance, cartage, stationery, courier, repairs, telephone expenses, sundries, etc. So now अब ये expenses आपको मिलेंगे कहाँ से? So for that you need to refer the question. See the question. So first is balance, so वो हम बाद में देखते हैं. Second you have given metro fare, then cartage, then courier, then wages, stationery, auto charges, repair. तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि विच काइंड ऑफ एक्सपेंसेस वी आर पेइंग, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर सपोज टू प्रिपेयर एक्सपेंस कॉलम. So students, here the expense columns are not fixed and they are variable, so it will depend on question to question. So fixed column will be, again I repeat, first receipt will remain as it is, then date, voucher number, particular, and then total payment. These are the fixed column. Remaining columns are variable, so they will depend on the question. Okay, so you can open illustration 11, which is given on page number 10.30 in new book. Okay, so with question, just see that prepare an analytical petty cash book on the Impress system from the following. Okay, so there are two systems for preparation of cash book. First is Impress system and then second is analytical. check देखते हैं सिंपल कैश बुक एंड इम्प्रेस सिस्टम. सो इम्प्रेस का मतलब क्या होता है, तो समझो यहाँ पे जो हमारा कैशियर होता है उसको हम बिगिनिंग में एक अमाउंट देते हैं. फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट का 10,000 इज़ बिन गिवन टू कैशियर, और वो जो कैशियर होता है उसका काम होता है छोटे मोटे एक्सपेंसेस को पे करना. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पेडी कैशियर. ठीक है, हमने उसको 10,000 दे दिया, और वो क्या करेगा थ्रू आउट द मंथ, या फिर जो भी टाइम होगा, वीकली, मंथली, बाई वीकली, है ना, फोर्टनाइटली एक्सेट्रा, तो वो सारे एक्सपेंसेस को धीरे धीरे पे करेगा. और फिर जब भी हम उससे हिसाब मांगेंगे तो हमें एक्सपेंस दिखाएगा कि फॉर एग्जांपल 10,000 वर गिवन टू मी, आउट ऑफ 10,000 आई हैव स्पेंड 5,000 और 4,000 वॉट एवर. अब जो भी दिखाएगा कि 5,000 उसने स्पेंड किया है, तो उसके पास अभी भी हमारा 5,000 अवेलेबल बैलेंस पड़ा हुआ है. तो अब हमें क्या करना होगा, हमें जो हमने स्टार्टिंग में 10,000 दिया था उसको मैच कर देना होगा. इसका मतलब 10,000 में से 5,000 यूटिलाइज़ किया, तो वो 10,000 को वापस 10,000 करने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 5,000 मोर. तो इसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम. देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन. ओके, सो हेडिंग आपने देख लिया है ना. ओके, नाउ सबसे पहले रिसिप्ट साइड पे क्या आएगा. ओके, डेट कॉलम में फर्स्ट डेट इज़ 2026 Jan 1. यू कैन सी कॉलम इज़ गिवन, इन दैट डेट इज़ रिटन. एंड नाउ हम सबसे पहले पैसा देंगे किसको, कैशियर को. तो बिजनेस विल प्रोवाइड मनी टू कैशियर, सो इन द हैंड्स ऑफ कैशियर इट कम्स इन. बिजनेस के पास पैसा आया, चलो कितना पैसा आया, 10,000. तो ये आपको लिखना होगा रिसिप्ट साइड. ठीक है, यहाँ पे हमें कैशियर का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. किसका देखना है, कैशियर का, क्योंकि बिजनेस ने पैसे दिए हैं तो फ्रॉम बिजनेस गोज आउट, बट वो नहीं समझना है. ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, कैशियर का. इट मीन्स पेड कैशियर.
सो कैशियर को कितना मिला है 10,000. सो 10,000 कम्स इन द बिजनेस ऑन 1st Jan 2026. सो इन पर्टिकुलर कॉलम हमने कैश दिया है, सो यू नीड टू राइट टू कैश. बाकी सारी कॉलम में कुछ भी आएगा नहीं. अब हमें रिसिप्ट में कुछ नहीं लिखना होगा जब तक कोई और पैसा कैशियर को नहीं मिलता है. आई रिपीट, जब तक कैशियर को कोई और पैसा नहीं मिलता है तब तक यहाँ और कुछ लिखना होगा नहीं. अच्छा, सो अब देखते हैं नंबर 2, पेड मेट्रो फेयर. ये हमने फेयर पे किया है, तो इसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, कन्वेयांस. इसको बाइफरकेट किया जाता है. जितना भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू कन्वेयांस. तो हमने कितना पे किया है 50. देखो स्टूडेंट्स, है ना, 50 रुपीज़ नॉमिनल एक्सपेंस है. तो पेटी कैश बुक का पर्पज़ ही यही है कि जब नॉमिनल एक्सपेंसेस होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, पेटी कैश. ओके, नाउ नेक्स्ट, पे किया है तो हमें कन्वेंस में लिखना है 50. देन अगर और कोई एक्सपेंसेस साथ में पे करते तो टोटल चेंज होता, बट एक ही एक्सपेंस पे किया है, सो टोटल पेमेंट्स में क्या आएगा, ओनली 50. सो इन शॉर्ट टोटल पेमेंट में क्या लिखना है, सारे एक्सपेंसेस का टोटल करके लिखना है. और पर्टिकुलर में क्या लिखना होगा, जो एक्सपेंस हमने पे किया दैट वी आर सपोज टू राइट दैट. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Jan 2, व्हाट इज गिवन, पेड कार्टेज. क्या पे किया है, कार्टेज पे किया है. सो नाउ कार्टेज एक्सपेंस है, कार्टेज की कॉलम यहाँ पे प्रिपेयर की है. सो पेमेंट साइड पे आएंगे, डेट 2 बाय कार्टेज अकाउंट. चलो पहले कार्टेज में लिखेंगे अमाउंट 250. कहाँ पे लिखना है, कार्टेज में. और फिर और कोई पेमेंट किया है सेकेंड डेट को, नहीं है, तो टोटल भी क्या हो जाएगा 250. नेक्स्ट January 3, paid for courier. So now see, column for courier is given, yes it is given. So date will be 3. वाउचर नंबर को इग्नोर करो, है ना, वाउचर अभी हमें नहीं देखना है. सो Jan 3 बाय कुरियर, सारे पेमेंट होंगे तो वो पेमेंट साइड ही आएंगे. रिसिप्ट साइड पे जब तक कैशियर को कोई और पैसा नहीं मिलता है तब तक वो रिकॉर्ड होगा नहीं. सो बाय कुरियर, चलो यहाँ पे है कुरियर में लिखा 500 और टोटल पेमेंट में आएगा 500. ओके, देन नेक्स्ट कौन सी डेट है, इट इज़ 3, अगेन 3, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर्स. चलो वेजेस पे किया है तो डेट विल रिमेन सेम. बाय वेजेस, ये देखना है एक्सपेंसेस होंगे तो बाय, क्योंकि पर्टिकुलर की यहाँ पे एक ही कॉलम है, दो अलग अलग कॉलम हैं नहीं, यहीं पे पर्टिकुलर का रिसिप्ट साइड भी आएगा, यहीं पे पेमेंट साइड आएगा. सो राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द पेमेंट, सो यू आर सपोज टू राइट बाय. सो बाय वेजेस एंड इन वेजेस कॉलम अमाउंट विल बी 600. नाउ सी हियर वेजेस कॉलम इज नॉट गिवन. तो अगर कोई भी एक्सपेंस नॉमिनल होता है तो उसके लिए हमने लास्ट में प्रिपेयर किया सनरेज. भाई एक ही बार पे करते हैं, बार बार डील नहीं करना होता है, तो जस्ट सनरेज प्रिपेयर करेंगे और उसको फिर हम टोटल में ऐड कर देंगे. सो लास्ट यू कैन सी दैट 600 वाज रिटर्न एंड देन टोटल पेमेंट इज 600. नाउ Jan 4, पेड फॉर स्टेशनरी. तो बाय स्टेशनरी अकाउंट, चलो स्टेशनरी प्रिपेयर किया है, यस. तो इन स्टेशनरी कॉलम 400, अदर कॉलम्स आर ब्लैंक, सो टोटल पेमेंट्स विल बी 400. नेक्स्ट अगेन 4, पेड ऑटो चार्जेस. ऑटो यानी ट्रैवलिंग हो गया, तो ट्रैवलिंग के लिए हमने क्या प्रिपेयर किया है, कन्वेयांस प्रिपेयर किया है. सो अगेन Jan 4 बाय कन्वेयांस. चलो इन कन्वेयांस कॉलम 200, सो टोटल पेमेंट विल बी 200, है ना. अगर एक ही एक्सपेंस है तो जो एक्सपेंस होगा वही टोटल पेमेंट हो जाएगा. अगर मोर देन एक्सपेंसेस होते देन टोटल पेमेंट विल चेंज. नेक्स्ट Jan 5, पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ चेयर. चलो चेयर को रिपेयर करवाया है, वो पे किया है हमने. तो Jan 5 बाय रिपेयर. नाउ से रिपेयर कॉलम इज गिवन, येस इट इज गिवन. सो इन रिपेयर कॉलम वी आर सपोज टू ऐड 1500, देन टोटल पेमेंट विल पे 1500. चलो अगेन Jan 5, पेड बस फेयर. चलो तो बस फेयर का मतलब ट्रांसपोर्टेशन हुआ. सो ट्रांसपोर्टेशन इज अगेन पार्ट ऑफ कन्वेयांस. तो कन्वेयांस के लिए हमने लिखा कन्वेयांस में 100 एंड देन टोटल पेमेंट विल बी 100. चलो पेड कार्टेज, अगेन कार्टेज पे किया है तो बाय कार्टेज. इन कार्टेज कॉलम 400 एंड टोटल पेमेंट विल बी 400. चलो नाउ Jan 6, पेड फॉर कुरियर. सो बाय कुरियर अकाउंट. चलो अमाउंट इज 700, सो इन कुरियर कॉलम 700 एंड टोटल पेमेंट विल बी 700. अगेन 6, कन्वेंस चार्जेस पे किया है. सो बाय कन्वेंस चार्जेस. इन कन्वेंस चार्जेस कॉलम 300, सो टोटल पेमेंट्स विल बी 300. नेक्स्ट पेड कार्टेज.
चलो कार्टेज पे किया है, सो इन टोटल पेमेंट्स 300 एंड कार्टेज ऑल्सो 300 एंड देन लास्ट एक्सपेंस इज पे टेलीफोन बिल। सो टेलीफोन बिल प्रिपेयर किया है हमने, यस टेलीफोन एक्सपेंसेस कॉलम इज गिवन लास्ट टू सेकंड कॉलम, सो इन दैट यू आर सपोज टू राइट 200 एंड देन टोटल पेमेंट विल बी 200। तो ये हमने किया कि जो 10,000 रुपीज़ हमें बिगिनिंग में मिला था उसमें से हमने बहुत सारे एक्सपेंसेस पे किए। अब हमें चेक करना होगा कि हमने टोटल कितना स्पेंड किया है। तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो टोटल पेमेंट की कॉलम है उसको टोटल करना है। सो उसका टोटल हियर यू कैन सी दैट द टोटल इज़ गिवन 5,500। इसका मतलब हमने कितना स्पेंड कर लिया है, 5,500। अब एक लाइन छोड़ देनी है, आपको लिखना है 5,500, फिर एक लाइन छोड़नी है और फिर आपको वो टोटल लिखना है जो बिगिनिंग में था, कितना 10,000। सी स्टूडेंट बोथ द साइड इट इज़ रिटन 10,000, बोथ द साइड मीन्स रिसिप्ट कॉलम जो हमारी फर्स्ट कॉलम है और पेमेंट है जो हमारी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम। सो फर्स्ट एंड फिफ्थ कॉलम में 10,000 लिखना है जो टोटल हो गया। अब 10,000 में से हम 5,500 माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस आएगा 4,500 जो आपको पेमेंट वाली कॉलम में देखने को मिलेगा 4,500। इसका मतलब कि इस मंथ, ये मंथ तो नहीं हुआ, वीक ही हुआ है क्योंकि डेट है 1 जैन टू 6 जैन। सो इस वीक में हमने 5,500 स्पेंड किया है। नाउ द अवेलेबल बैलेंस इज़ 4,500 जिसको हमने क्या किया है तो नेक्स्ट वीक में कैरी फॉरवर्ड किया ना। देखो वापस रिसिप्ट साइड पे आया 4,500 क्रॉस एंट्री, तो यहाँ पे 4,500 आया जैन 7 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब याद रखो इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो जितना कैश दिया होता है वो हर टाइम हमें मैनेज करना होता है, उतना कैशियर को देना होता है। तो 10,000 में से 4,500 अवेलेबल है, सो हम और 5,500 ऐड कर देंगे, सो अगेन द टोटल विल बी 10,000। तो देखो हमने 7 जैन को वापस ऐड कर दिया है कैश अकाउंट 5,500 एंड दिस अमाउंट इज बीन गिवन टू कैशियर फ्रॉम द बिजनेस, दैट्स वाई इन द हैंड्स ऑफ कैशियर इट कम्स इन। तो वो कहाँ पे लिखा है, डेबिट साइड। सो ये है पेटी कैश बुक। सो नाउ हियर सो मेनी कॉलम्स आर देयर। तो आपके माइंड में श्योरली डाउट होगा कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है, तो हम इसको नोटबुक को हॉरिजॉन्टल वे में यूज़ करके प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ हो। इसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। हाँ एक पार्ट रह गया, जितने भी एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे वो सबको हमें टोटल कर देना है, जस्ट पार्ट ऑफ फॉर्मेलिटी खाली टोटल करके लिख देना है। तो कन्वेंस 50, 200, 100, 300 से टोटल इज 650। बस खाली टोटल करना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारी डीलिंग किससे होती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट से, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। कार्टेज 250, 400, 300 से टोटल इज 950। देन स्टेशनरी 400 सो टोटल इज 400। कुरियर 500, 700 से टोटल इज 1200। repairs 1500, so only one particular is there, so total will be 1500. Telephone expenses 200, so total is 200, and sundries 600, so total will be 600. I repeat, मेन आपको यहाँ पे क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब ये होता है सिंपल वे में कि कैशियर को अगर हमने 10,000 दिया है तो कैशियर अब उसको हम टाइमलाइन देते हैं। फॉर एग्जांपल 1 वीक का टाइम देते हैं, 15 डेज़ का टाइम दे सकते हैं, 1 मंथ का टाइम दे सकते हैं। इट विल डिपेंड ऑन बिजनेस टू बिजनेस। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 वीक का टाइम दिया है, तो 1 वीक में कैशियर ने कितना स्पेंड किया है, 5,500। जैसे वीक खत्म होगा, नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, तो वापस कैशियर के पास कितना रहना चाहिए, 10,000। तो इन शॉर्ट जितना उसने स्पेंड किया होगा ना कैशियर ने, उतना हमें एवरी वीक या एवरी मंथ या हाफ ईयरली या फिर ईयरली हमें उसको पे करना होगा। जनरली ये टाइम लाइन ईयरली या हाफ ईयरली जितना नहीं होगा, है ना, वीकली हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है, या फिर मंथली हो सकता है। सो दिस इज़ पेटी कैश बुक एज पर इम्प्रेस सिस्टम कैश बुक, है ना। याद रखना है रिसिप्ट की कॉलम होती है, बाकी सारी कॉलम्स किसके लिए होती हैं, एक्सपेंसेस के लिए। यहाँ पे पर्टिकुलर रिसिप्ट और पेमेंट के लिए अलग अलग नहीं होती हैं, दोनों एक ही होती हैं। तो आपको ध्यान रखना होता है कि जब हम पे कर रहे हैं तो आपको बाय यूज़ करना होगा, जब रिसीव करेंगे एट दैट टाइम टू यूज़ करना होगा।
सो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। थैंक यू।